a very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis for 16th of March, which is presented to you by LawSeco. Now, as far as today's agenda is concerned, Pehle will be taking up some national and international news relevant for your exam. This is going to be followed by legal news update. आज हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है to discuss. इसके बाद thirdly हम editorial pieces discuss करेंगे Indian Express के. There are two editorials. Pehla is with respect to again the petition which is before the Honorable Apex Court seeking legal recognition of same-sex marriage, and this is indeed an important and interesting opinion piece by a senior advocate of the Supreme Court जो कि बात करते हैं about what is the concept of marriage and state का role कहाँ आता है कहाँ नहीं आता. एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे BCI नोटिफिकेशन के बारे में जिसने फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स को अलाउ कर दिया टू प्रैक्टिस इन इंडिया. तो हम देखेंगे कि व्हाट सेक्टर्स और व्हाट एरियाज ऑफ लॉ हैव बीन परमिटेड एंड क्या नहीं परमिटेड है. सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ हेडलाइन. दिस इज़ अबाउट अ सर्वे जो कि किया गया है IQ Air स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़. तो इंडिया पहले तो इज़ एट द 8th पोजीशन. सेकेंडली आउट ऑफ द 50 सिटीज़ जो कि बहुत ही पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 39 इंडियन सिटीज़ है. Now let's proceed with the next update. This is with respect to RBI granting the status of Infrastructure Finance Company IFC to Indian Renewable Energy Development Agency. इस एजेंसी को IREDA इसको पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का स्टेटस दिया गया था. हाउएवर अब क्योंकि जब इसको नया स्टेटस दे दिया गया विच इज़ IFC, इसके बाद दिस विल बी एबल टू टेक हायर एक्सपोजर इन योर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग. And this particular status, it is also going to help it to access wider investor base for fund mobilization, resulting in competitive rates for fund raising. Now let's proceed with the next update. This is with respect to a new update when it comes to the segment of finance and women. There's a bank, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने लॉन्च की है एक नई सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन. इसकी फीचर्स ये हैं कि it will be a 7% per annum interest rate with monthly interest credit, and ये जो scheme है it also dons or spots a special rupee debit card that gives discount on shopping. Next update is with respect to the defense segment. तो DRDO ने recently conduct कराए हैं 2 successful flight test of Vishored's missile. तो Vishored's जो है इसका अगर मैं full form की बात करूँ तो it stands for very short range air defense system. तो अगर आप इसके नाम से भी if you can figure out तो you would know the purpose of this particular missiles. तो ये क्या करती है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो नीचे हाइट के जितने भी एरियल थ्रेट्स होते हैं हमारे पास और वो भी शॉर्ट रेंज पे एकदम करीब के जो उनको न्यूट्रलाइज करती है ये मिसाइल्स. तो दिस वाज डन सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय DRDO एंड इट हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इट वाज इंडिजिनसली डेवलप्ड, मतलब अपने इंडिया के ही हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर्स में ये डेवलप हुआ था इन कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स विद DRDO लैब्स एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स. Now let's proceed with the next update. So see the Bureau of Indian Standards, उन्होंने लॉन्च करी एक नई लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स, एंड इसका फोकस होगा ऑन अ सीरीज ऑफ लेसन प्लान्स जिसका एम है टू यूज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज स्टेटेड इन रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स. Now, as far as next update is concerned, this is with respect to the Ministry of Jal Shakti recommending 75 water heritage sites. So, Ministry of Jal Shakti, which is responsible for all the water related or water ministry related work, उन्होंने recommend करी है 75 water heritage sites, and a total of 421 nominations were received इस particular listing के लिए. डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, सेंट्रल एजेंसीज, NGOs सब ने पार्टिसिपेट करके ये इतने नॉमिनेशंस दिए थे, जिसमें से फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 75 पर्टिकुलर लिस्ट नॉमिनेशंस में इनको फाइनली रेकमेंड कर दिया. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट अपडेट दैट वी हैव फॉर टुडे, which is that India and Sweden has signed a memorandum of cooperation to promote research networking. इसका aim है to promote mobility funding opportunities in both countries, and it will facilitate also academic cooperation through mobility activities as well as through seminars, workshops and conferences. Next international update is with respect to World Consumer Rights Day.
Of course, this was celebrated yesterday, which is 15th of March, and इसका purpose था to raise global awareness about consumer rights and needs. इसके रिस्पेक्ट में अगर आपने हमारा कल का TNA फॉलो किया होगा तो यू वुड सी कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपडेट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक अर्लियर डिसीजन जिसने अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2019 उसको फॉलो करें. तो यू कैन गो एंड रीड दैट न्यूज़ ऑल्सो. Now let's proceed further. Kali, which is 15th of March, International Day to Combat Islamophobia was also celebrated. Last year, United Nations ने declare किया था 15th March को as this particular day. And this date, it also marks 4 years since the terrorist attack on 2 mosques in Christchurch, New Zealand took place. Now let's proceed to the legal news update segment. This is a Supreme Court decision जहाँ पे Supreme Court ने ये explain किया है. Supreme Court has explained जो tests हैं which are needed to determine if cause of action has arisen within jurisdiction of a high court. तो अगर हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल होती है उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट ले डाउन किए हैं कि क्या क्या टेस्ट होंगे जो डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है जिससे कि आई नाउ हैव अ राइट टू अप्रोच दी हाई कोर्ट सीकिंग रिट. So Apex Court said that in context of a writ petition, cause of action would be constituted based on the material facts which are imperative for the writ petitioner to plead and to prove in order to obtain relief. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब कोई writ petition फाइल होती है तो cause of action जो है it would वो कैसे पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन. एसेंशियली देखो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है. इट इज़ अ बंडल ऑफ फैक्ट्स जो कि अग्रीव्ड पार्टी पुट फॉर्थ करती है कोर्ट के सामने ये कहते हुए कि आई हैड अ लीगल राइट एंड नाउ ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द डिफेंडेंट और द रिस्पोंडेंट माई लीगल राइट्स आर वायलेटेड. तो देयरफॉर आई हैव अ रेमेडी विच इज़ प्रोवाइडेड टू मी बाय लॉ एंड लॉ मुझे रेमेडी प्रोवाइड करती है इसीलिए आई हैव अप्रोच बिफोर यू द कोर्ट to settle in my dispute and grant me the relief that I'm entitled to. तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा बेस्ड ऑन मटीरियल फैक्ट्स क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है. इट इज़ बंडल ऑफ फैक्ट्स जो कि पार्टी को प्रूव करनी होती है. तो कोर्ट ने कहा है कि दिस इज इम्परेटिव फॉर रिट पेटिशनर टू प्लीड एंड ऑल्सो टू प्रूव ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिलीफ. तो कॉज ऑफ एक्शंस के ये क्वेश्चंस भी आता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स में कि व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन. सो दीज आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दीज आर बंडल ऑफ फैक्ट्स मटीरियल फैक्ट्स एंड जिसको आपको प्लीड एंड प्रूव करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द रिलीफ विच इज ग्रांटेड बाय टू यू बाय द लॉ. The name of this particular case is State of Goa versus Summit Online Trade Solutions Private Limited and others. Now let's proceed with the editorial for today. First editorial is the editorial by the senior advocate in Supreme Court of India. The editorial is titled as Unions of Our Own Choices. ये बहुत ही interesting article है and I would recommend all of you to pay attention to it. सबसे पहले तो ये एडिटोरियल स्टार्ट होता है बाय सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटिशंस हैं उसमें कोर क्वेश्चन क्या है. तो इट सेड दैट द कोर क्वेश्चन वाज व्हाट इज मैरिज. एंड इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए इस आर्टिकल में बहुत ही ब्यूटिफुली बताया गया है कि सी मैरिज इट इज़ ए वॉलंटरी यूनियन ऑफ इक्वल्स. दो पार्टीज जो कि इक्वल स्टेटस की हैं इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक द रिस्पेक्ट दैट पार्टीज हैव म्यूचुअली. सो इक्वल्स का एक यूनियन है वॉलंटरी यूनियन है जहाँ पे कोई भी पार्टी व्हेन दे कम टुगेदर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज रैदर तो वो अपनी ऑटोनमी अपनी इंडिविजुअलिटी अपनी पर्सनालिटी को नहीं लूज़ करते. दिस इज़ नॉट अ ट्रेड. एंड देन ये एडिटोरियल फर्दर कहता है पार्टीज टू मैरिज regardless of the sexual orientation that they have or the gender identity of the parties, they agree to a mutual bond to provide emotional, financial and sexual support to each other. And in such an understanding of marriage, gender या sexuality of either party, it should be irrelevant for all legal purposes. तो essentially ये आर्टिकल ये बात करता है सिंस मैरिज एक वॉलंटरी यूनियन है इक्वल्स का जिसमें वो एक दूसरे की ऑटोनमी नहीं छोड़ते एंड mind you, gender, sexual orientation, it is a facet of personal autonomy that a person has, right? तो जिसमें अगर वो अपनी autonomy नहीं छोड़ते मैरिज जो यूनियन है तो that would essentially mean कि parties to a marriage regardless of क्या उनकी gender identity है वो agree करते हैं to come together in a union out of their own desire and out of their mutual understanding, right? So there is no question of gender at all. And further this particular article says that there is mutuality to the relationship of affection
and desire which could lead individuals into marriage. So neither affection nor desire can be mandated by law, and hence neither the choice of partner nor the gender of the partner nor the relationship between the two can be mandated by the law. So essentially आर्टिकल ये कहता है कि क्योंकि there is mutuality of relationship of affection and desire, दो लोग हैं वो they've come together due to their desire and their affection to be together, इसमें जेंडर का या जेंडर ऑफ द पार्टनर देयर इज नो रोल ऑफ दैट, राइट? तो अगर उसका कोई रोल ही नहीं है तो व्हाई शुड स्टेट कम इन? फर्दर ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट कैन हैव नो लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग सिंस इट इज़ द मोस्ट इंटीमेट डिसीजन दैट अ पर्सन टेक्स फॉर हिमसेल्फ एंड देयर इज नो पब्लिक पॉलिसी एस्पेक्ट इन्वॉल्व हियर। एंड फर्दर ये एडिटोरियल ये डिस्कशन करता है कि जैसे अगर हम हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें स्टेट का रोल कहाँ आता है? उसका स्टेट का रोल तब आता है जब कोई वल्नरेबिलिटीज़ है उस रिलेशनशिप में, और आना चाहिए, रादर ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट का रोल तब आना चाहिए जब उस रिलेशनशिप में कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं और उन वल्नरेबिलिटीज़ के कारण ही वो रिलेशनशिप टूट भी जाता है। और इस वल्नरेबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि दो तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ स्टार्ट होती है एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में एंड इवन फॉर अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। पहला तो कि देयर इज़ नो लॉ फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी, और यूजुअली क्या होता है हस्बैंड के हाथ में दी एसेट्स आर मोस्टली देयर, तो इससे क्या होता है कि देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन सच सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। एंड सेकेंडली एडिटोरियल बात करता है वेरी इंपॉर्टेंटली कि हमारी कंट्री में देयर इज नो रिकग्निशन ऑफ प्री नप्शल अग्रीमेंट्स। प्री नप्शल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर एसेंशियली अग्रीमेंट्स जो पार्टीज एंटर करती है बिफोर देयर मैरिज, जिसमें वो डिसाइड करती है कि इफ़ वी हैपन टू ब्रेक द मैरिज, अगर डिवोर्स हो जाता है अदरवाइज ऑल्सो, तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद आर एसेट्स। सो दिस इज ए प्री नप्शल अग्रीमेंट। एंड फर्दर ये आर्टिकल डिस्कस करता है दैट इंडिया में क्योंकि कोई भी लॉ नहीं है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का विद इन मैरिज, एंड ऑल्सो दैर इज नो लॉ दैट रिकग्नाइज प्री नप्शल अग्रीमेंट, सो मे बी दैट्स वन आस्पेक्ट वेयर द गवर्नमेंट कैन लुक इन टू। एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि हमारी कंट्री में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। Further, the editorial talks about very importantly the fact that the state is duty bound to respect the choices of union that the people of this country make. It is the duty of the state to respect, to protect, and to fulfill these rights by preventing offences and violations from being committed on vulnerable populations. एंड फर्दर ये आर्टिकल डिस्कस करता है दैट दिस पर्टिकुलर पेटिशन, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये आर्टिकल कहता है कि दिस पेटिशन इज़ नॉट डीलिंग और इट इज़ नॉट डिमांडिंग अ राइट टू मैरी, क्योंकि वो तो पार्टी के पास फ्रीडम वैसे भी है, अदरवाइज टू पार्टीज कैन गो एंड मैरी ईच अदर। बट ये पेटिशंस जो इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट कर रही है वो ये है कि वी वॉन्ट लीगल रिकग्निशन ऑफ आर मैरिज, ऑफ आर यूनियन इन द सेम मैनर जैसे हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को मिली हुई है। एंड फिर ये आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करता है कि कैन द स्टेट विद होल्ड दिस रिकग्निशन even when no legitimate state is involved in this, and then the article this editorial goes on to suggest कि state ऐसा नहीं कर सकता because this is the most intimate decision that two parties make, and इसमें there is no societal interest involved and there is no public policy angle involved. And further ये आर्टिकल दिस एडिटोरियल देन मूव्स ऑन टू डिस्कस द एफिडेविट ऑफ द सेंटर, एंड वो कहता है कि सेंटर ने जो ये मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे प्रेजेंट किया ना अपने एफिडेविट में, तो वो कहता है कि दैट्स नो रीज़न व्हाई अ सेम सेक्स कपल की जो मैरिज है वो इंस्टीट्यूशन नहीं कहला सकती। अगर हम हेट्रोसेक्सुअल कपल की मैरिज को इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं तो द सेम शुड ऑल्सो बी द केस विद अ होमोसेक्सुअल कपल की मैरिज। एंड सेकेंडली एडिटोरियल बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द एफिडेविट कि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नो मोर सेक्रमेंट, क्योंकि अब इट इज़ डिजॉल्वेबल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवोर्स, एंड जो कि हमारी कंट्री में तो बहुत सारी है डिवोर्स रेट, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रमेंट और द मैरिज बीइंग पेरिनियल थ्रू आउट द एजेस, 7 जन्मों तक चलता रहेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है अब। एंड फर्दर ये कहता है कि जो एफिडेविट है वो स्टीरियोटाइप्स जो ऑर्थोडॉक्स टाइम से चले आ रहे हैं उसी को प्रोपाउंड कर रहा है। दिस इज़ पेट्रियार्कल एंड दिस इज़ होमोफोबिक ऑल्सो। एंड फर्दर ये कहता है कि अगर विदहोल्ड कर ली जाएगी रिकग्निशन ऑफ सच सॉर्ट ऑफ मैरिज, देन दिस इज गोइंग टू हैम्पर the Supreme Court's decision in the case of Navdev Johar versus Union of India, जिसमें essentially carnal intercourse against the order of nature उसको decriminalize करा था और homosexuality को decriminalize करा था। तो this is what the editorial talks about, and it says that if nothing else, this judgment recognize
that sexual intercourse between two persons of the same gender, it was not against the order of law, and therefore the heteronormative concept of marriage जो कि सेंटर प्रोपाउंड करी अपने एफिडेविट से, it is homophobic and patriarchal, and by all means the Supreme Court should allow or give recognition to this homosexual couples marriage, because LGBTQI community members have been living an existence which was considered illegal so far before this particular judgment, though this should not be propounded any further. Now let's proceed to the next editorial, which is what has the BCI announced in its which is about the BCI's latest notification about allowing foreign lawyers and law firms to practice in India. सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि BCI ने एक्चुअली अनाउंस क्या किया अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में. तो देखो, ये BCI ने नोटिफाई किया है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022. एंड उन्होंने ये कहा है कि फॉरेन लॉ फर्म्स अब इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएगी क्या क्या चीज़ें. दे कैन participate in corporate work, they can however they cannot practice in Indian law, and they cannot do any work which is related to conveyance of property or title searches. तो बेसिकली अगर किसी फॉरेन लॉयर एंड फॉरेन लॉ फर्म को इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उसकी कंडीशन ये है कि दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द BCI एंड दे शुड ऑल्सो बी एंटाइटल टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर ओन कंट्री ऑफ ओरिजिन. पहला तो ये, एंड दूसरा कि जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो लिमिटेड है इन सब उसके रिस्पेक्ट में. कॉर्पोरेट वर्क है, आर्बिट्रेशन रिलेटेड वर्क है, एंड अदर्स ट्रांजैक्शनल मैटर्स हैं, तो उन सब में ही सिर्फ लिमिटेड जो मैटर्स दिए हैं उन्हीं मैटर्स के रिस्पेक्ट में दे कैन प्रैक्टिस, एंड अदर देन दैट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडियन बिफोर इंडियन कोर्ट्स और इंडियन ट्राइब्यूनल्स में. एंड BCI ने इसकी रीजनिंग देते हुए ये कहा है कि दिस विल एड्रेस द कंसर्न्स अबाउट फ्लो ऑफ FDI एंड दिस विल मेक इंडिया अ हब ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration, and they will not be able to practice in Indian कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करें और या इसकी लीगल हिस्ट्री की बात करें तो देयर वाज दिस मैटर बिफोर दी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, लॉयर्स कलेक्टिव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स जो है वो बोथ लिटिगेशन रिलेटेड मैटर्स एंड ऑल्सो नॉन लिटिगेशन रिलेटेड मैटर्स है, दोनों में ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हाउएवर फ्लाई इन फ्लाई आउट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिकग्नाइज किया था. तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई लॉयर किसी पार्टी को एडवाइस करने इंडिया आते हैं एंड उनका अगर फ्लाई इन फ्लाई आउट वाला बेसिस पे आते हैं, दैट दे डू नॉट परमानेंटली सेट हियर एंड डू द डिस्पेंसेशन ऑफ लीगल एडवाइस बट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो दैट इज परमिटेड. बट अदर देन दैट ना ही लिटिगेशन रिलेटेड ना ही नॉन लिटिगेशन रिलेटेड उसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में. सिमिलर वॉज द स्टैंडिंग ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ A.K. Balaji versus Government of India, and the same was the Supreme Court's decision in I believe 2018. So that's about it. That's all we have for today's TNA. In case you want to have access to free study materials and the TNA slides जो हमने यूज़ करी हैं, तो please feel free to join our Telegram channel, जो आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हमारे YouTube वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसको यूज़ करके, एंड दूसरा आप ये बार कोड को स्कैन कर सकते हैं. अगर आपको लॉ सीखो की टीम से कांटेक्ट करना है फॉर एनी पर्पस, काइंडली फील फ्री टू डू सो यूजिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मोबाइल नंबर एंड द ईमेल एड्रेस. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि लॉ सीखो प्रीवियस डे के TNA का जो क्विज़ है वो कंडक्ट कराता है एवरी डे. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 15 मार्च का जो क्विज़ है TNA क्विज़ वो मिल जाएगा. काइंडली अटेम्प्ट दैट एंड आई वुड हाईली एनकरेज ऑल ऑफ यू टू डू सो. ऑल्सो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि जिसके आंसर्स जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनके नेम्स हम अनाउंस करेंगे इन ऑर्डर टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टू डू दैट. So it gives me immense happiness to say that we have 2 people who have answered the question correctly कि 20th century के कौन से ऐसे scientific genius थे जिनका बर्थडे 14th को था. The answer is Albert Einstein, and the first person to answer this correctly is Shivani Podder. Congratulations and all the very best with your future preparation. And second we have Muskan Agarwal. Well done you guys, and all of you, thank you for giving us your time, and do give us your feedback and like, share, subscribe and comment. We would love to hear from you. Thank you for being with us.